Today we will start a new chapter and we will understand the concepts of this chapter. The name of the chapter is solid state. We know that three physical states of matter are solid, liquid and gas. Liquid and gaseous states are done in class 11th, and in class 12th we will study this solid state of matter. According to kinetic molecular theory, matter is made up of very small particles, and these particles can be atoms, ions or molecules. And in solid or solids, these particles are packed very closely, very tightly through strong intermolecular forces, right? We have some basic information about the properties of solids also, like solids have definite shape, they have definite volume, they are rigid, their compressibility and rate of diffusion is very low, but density is very high. The first two in-text questions of your NCERT textbooks are based on these basic properties of solids. The first in-text question is, why solids are rigid? Why solids are rigid? The solids are rigid due to involvement of strong intermolecular forces. This is the answer. Okay, solids are rigid because of the presence of strong intermolecular forces. And the second question says, why do solids have a definite volume? The answer is, solids are rigid and incompressible. And the things which are incompressible, they have definite volume. The answer, again I am repeating, that solids are rigid and incompressible, hence they have definite volume. So how can we define a solid? Answer is, a solid is defined as a form of matter in which the particles, means the ions, atoms or molecules, are held so strongly that they cannot easily move. That is, they have a rigid structure, they have rigidity, and they possess a definite shape and a definite volume. On the basis of the arrangement of particles, now we will discuss the types of solids. And when we discuss the types of solids on the basis of arrangement of particles, then there are two types of solids, amorphous and crystalline. So first of all, we will learn these two types of solids, amorphous solids and crystalline solids, through comparative basis. क्लास 11th में जब आपने लैब करी है और आपको सॉल्ट्स मिलते थे, तो आप सॉल्ट्स का स्टेट जो है वो रिपोर्ट करते थे, और सॉल्ट्स की जो स्टेट रहती थी सॉलिड रहती थी, लेकिन कुछ सॉल्ट्स जो थे वो क्रिस्टलाइन आप रिपोर्ट करते थे और कुछ सॉल्ट्स जो थे वो आप अमॉर्फस रिपोर्ट करते थे. अब जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन में जो वर्ड आ रहा है क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है, हम क्रिस्टल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो क्रिस्टल जो है वो एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसका एक डेफिनेट ज्योमेट्री आती है, जिसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, राइट. और जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे. और जब हम अमॉर्फस की बात करते हैं, तो अमॉर्फस को हम लैब में भी डिस्कस करते थे कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं उनका कोई भी एक शेप नहीं होगा, कोई भी डेफिनेट उनकी ज्योमेट्री नहीं होगी. तो इतना बेसिक सा डिफरेंस हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में पता है. हम थोड़ा सा और डिटेल में इन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं. तो एक साइड हमने लिख लिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी साइड हमने लिख लिया है अमॉर्फस सॉलिड. अब हम इसमें फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में फर्स्ट डिफरेंस क्या है. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो उनमें एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट आएगा, कुछ इस तरह से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट रहेगा, सब एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, राइट. और इसी से ही इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री आती है, डेफिनेट ज्योमेट्री आती है. और जब हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको जहाँ जैसे जगह मिलती है वो उसी हिसाब से ही अरेंज हो जाते हैं, राइट. तो दोनों में जब फर्स्ट डिफरेंस की हमने बात करी, तो हमने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव अ डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, दे हैव अ डेफिनेट
and regular geometry. Regular geometry. और ये रेगुलर ज्योमेट्री होती क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. लेकिन जब हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट है. दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न. कोई भी उनमें पैटर्न नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है. दे डू नॉट हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री. ये सबसे पहला और मेन डिफरेंस ही है जब हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, राइट. क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो हम कहते हैं बहुत ही शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होंगे. कि एक पर्टिकुलर सॉलिड अगर 121 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है तो वो उसी टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा. लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प या फिक्स नहीं होता है. वो एक रेंज पे मेल्ट होना शुरू होते हैं. कि सपोज अगर हमने बात करी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 121 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ. जब हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं तो हमने उस टेम्परेचर पे थोड़ी देर तक उसको होल्ड किया. वो सारा का सारा जो है सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या वो मेल्ट हो जाएगा. लेकिन जब अमॉर्फस सॉलिड्स होंगे तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू होंगे. सपोज मेल्ट होना स्टार्ट हुए 115 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होते हैं. हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे तो पता चला वो पूरी तरह से या फाइनली जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वो मेल्ट हुआ वो 120 या 125 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है. तो एक रेंज आ रही है, एक फिक्स पॉइंट नहीं आ रहा है, एक रेंज के ऊपर वो जाके मेल्ट हो रहा है. तो जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हम बोलते हैं दे हैव अ वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, राइट. और उसी शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू. थर्ड डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में जो है वो है एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक. यानी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सारी नहीं, थोड़ी सी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो जाती हैं. तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. कैसे? देखिएगा, ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं जिसमें एक ऑर्डरली अरेंजमेंट आया है कि पहले एक एटम, फिर दूसरा एटम, फिर एक एटम, दूसरा एटम, यानी ऑल्टरनेट ए बी लगे हुए हैं. फिर ऐसे ही हमने यहाँ पे ए के नीचे बी को लगाना है, हमें डिफरेंट लगाना है. फिर बी ए करके हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया. इसी तरह से ये अरेंज किया और फिर अगर यहाँ पे भी हमें करना है तो ए के नीचे बी आ जाएगा, बी के नीचे ए, और ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट आ रहा है जो यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट प्रेजेंट है, राइट. अब अगर हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, सपोज अगर हम इधर से इधर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो ऑर्डर हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए के बाद बी और बी के बाद ए, इस तरह से ये ऑर्डर है. अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो एटम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ए हैं. अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो सारे के सारे एटम्स बी आ रहे हैं, राइट. तो डायरेक्शन चेंज करने पे क्या हो रहा है? जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है. हमें एक डायरेक्शन में बी मिल रहे हैं, एक में ऑल्टरनेट ए बी मिल रहे हैं, एक में ए मिल रहा है. तो जितने भी रेगुलर या डेफिनेट ज्योमेट्री वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कुछ इस तरह से ऑर्डरली अरेंजमेंट आ रहा होता है वो सारे के सारे एनआइसोट्रॉपिक होते हैं. तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या हुआ? जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. और बहुत लंबी लिस्ट नहीं है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बात करते हैं. जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना होता है कि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, लाइट फॉल हो रही है अगर ग्लास के ऊपर, तो वो आप देखते हो कि बेंड हो गई. उसके बाद जब वो ग्लास के थ्रू बाहर निकलती है तो भी वो बेंड होकर ही निकलती है. तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से ही हो रही है. कि ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं. लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. आइसोट्रॉपिक.
अब ये आइसोट्रॉपिक क्यों है? आइसोट्रॉपिक इसलिए है कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो जो है रैंडम है, डिसऑर्डर में है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी डायरेक्शंस होंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी। 50-50% चांस होगा कि अगर हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमें एक जैसे मिले या दूसरी डायरेक्शन में चलने पे मिले। अदरवाइज इसमें जो है रैंडम सारे एटम्स पड़े होने की वजह से या डिसऑर्डर होने की वजह से इसमें जितनी भी डायरेक्शंस आती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी डायरेक्शन में सेम नहीं होंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो सेम प्रॉपर्टी शो करें इन ऑल द डायरेक्शंस शोज सेम प्रॉपर्टी or properties in all direction are called isotropic। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है एनाइसोट्रॉपिक। और ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें, फोर्थ डिफरेंस, तो हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे कि अगर आईएनसी क्यों ना प्रेजेंट हो तो एक पहले पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट आता है ये ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल देखने को मिलता है। तो जब थ्रू आउट द क्रिस्टल हमें इस तरह से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि पहले ए आया या पहले बी आया कॉन्स्टेंट पार्टिकल, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो ये बहुत लंबे डिस्टेंस या थ्रू आउट द हमें क्रिस्टल ये चीज़ देखने को मिलेगी। यानी जो रिपीटिशन हो रहा होगा वो एक ऑर्डरली रिपीटिशन होगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि सपोज अगर इसमें कांस्टेंट पार्टिकल इसमें भी ए और बी प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि पहले कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहा, उसके बाद बी आया, उसके बाद फिर ए और फिर बी, और उसके बाद फिर रैंडम कुछ भी स्टार्ट हो गया, से बी के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो बस ये यहाँ तक ही हमें देखने को मिला कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट आ रहा है कि ए के बाद बी है और फिर उसके बाद ए है और फिर ए के बाद बी है, राइट। तो एक शॉर्ट रेंज तक हमें को देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट आता है पार्टिकल्स का। फिफ्थ डिफरेंस हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनको बोला जाता है ट्रू सॉलिड्स, यानी जो पूरी सॉलिड की डेफिनेशन है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें देखी जाएंगी। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीडो मीन्स होता है फॉल्स सॉलिड्स बोलते हैं, राइट। और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी। लिक्विड्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिक्विड्स जो होते हैं वो अगर बहुत थिक हैं तो वो उन्हें हम बोलते हैं विस्कोसिटी शो करते हैं। और लिक्विड्स में क्या होता है? फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करते हैं लिक्विड्स। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं लेकिन लिक्विड्स फ्लो करते हैं। अब अगर हम ग्लास पूछें कि ग्लास क्या है, ग्लास जिसको हम कंसिडर करते हैं कि एक सॉलिड की तरह है, वो सॉलिड की तरह ही हमको दिखता है, लेकिन जो ग्लास है वो बेसिकली एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है? सीडो सॉलिड्स। तो जो ग्लास है उसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी। ग्लास भी फ्लूइडिटी शो करता है, राइट, फ्लूइडिटी शो करता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर वो ग्लास लगा रहे, अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स को देखें तो जो बॉटम है उस बॉटम पे जाके जो ग्लास है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। और वो थिकनेस उसमें क्यों आ रही है? क्योंकि ग्लास पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, राइट। उसको हम क्या बोल रहे हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोल रहे हैं ऑफ हाई विस्कोसिटी। और अगर हम लिक्विड बोल रहे हैं तो उसमें फ्लूइडिटी आनी ही आनी है। तो जो ग्लास है वो आपका हो जाता है अमॉर्फस सॉलिड। और ग्लास की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, और फ्लो करने नए ग्लासेस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पुरानी बिल्डिंग्स हों और उसमें जो विंडो पेन्स हों अगर उसमें देखें तो ग्लास जो है वो बॉटम पे आके थोड़ा सा थिकनेस शो करते हैं। तो वो क्यों थिक हो गए? क्योंकि ग्लास पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, वो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। और वो अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं? लिक्विडिटी शो कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर ट्रू सॉलिड्स, वेयर
whereas amorphous solids like glass are considered as pseudo solids or super cooled liquids of high viscosity. लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड, बहुत रिजिड होंगे, टफ होंगे, ठीक है, और इनका जो शेप है उसे हम फोर्स अप्लाई करके डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. मार्बल है सपोज, ठीक है, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट और चौक जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट है. लेकिन जो मार्बल है वो बहुत ही रिजिड है. मार्बल को अगर हम हाथ से लेके क्रश करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, राइट, बहुत ही रिजिड होता है. लेकिन जो चौक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन वो अमॉर्फस फॉर्म है. आपने लैब में किया था, आपको ध्यान होगा कि जो कैल्शियम के सॉल्ट मिले थे, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिला था, वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में था. और हमने रिपोर्ट भी किया था कि सॉलिड तो है लेकिन अमॉर्फस सॉलिड है. और चौक को अगर हम हाथ में लें और थोड़ा सा अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो हम चौक को क्रश कर सकते हैं. तो चौक को अगर हम क्रश कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड नहीं है, दे आर नॉट वेरी रिजिड, दे आर नॉट रिजिड, नॉट रिजिड. और उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, शेप को हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. कैसे? अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो दिस इज़ द लास्ट डिफरेंस. वैसे डिफरेंसेस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन डिफरेंसेस की बात करें तो ये लास्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल मार्बल which is calcium carbonate, or they are not rigid, they can be easily distorted, or for example chalk. Formula is again calcium carbonate. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. हैं तो 4 तरह के, लेकिन हम 3 तरह के टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एक आयनिक सॉलिड्स हैं, एक एटॉमिक या फिर कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स हैं, और तीसरा हमारे पास जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड. बेसिकली सॉलिड्स में क्या हमने देखा कि रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, यानी यूनिट्स जो हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है. अब अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स में जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि पार्टिकल्स जो होंगे वो आयंस होंगे. और आयंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस यानी कि एनायंस. तो आयनिक सॉलिड में जो अरेंजमेंट होगा, ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, वो आयंस का होगा. मींस एक पॉजिटिव आयन आया, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. इसी तरह से पॉजिटिव के साथ जब हम नीचे यहाँ पे लगाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से हम एक ऑर्डरली अरेंजमेंट दिखाते हैं. तो आयनिक सॉलिड्स में जब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बेसिकली आयंस और दोनों आयंस यानी कि कैटायन और एनायन. अब इसमें जो भी आयन है, सपोज अगर ये जैसे पॉजिटिव चार्ज आयन यहाँ पर है तो इसको अगर हम देखें तो इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये नेगेटिवली या नेगेटिव आयंस या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे. और यही अगर हम पॉजिटिव आयन को देखें, इसमें से कहीं पे भी अगर हम पॉजिटिव आयन को नोटिस करें तो उसके चारों तरफ जो है वो ये नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है. और ये कहलाता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट. और ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें सॉलिड में तो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है आयनिक सॉलिड्स में. तो आयनिक सॉलिड्स जितने भी होंगे उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो आयंस होंगे और ऑर्डरली अरेंजमेंट तो होगा ही होगा. सेकेंड जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का उसको बोलते हैं एटॉमिक, कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड. अब नाम से ही पता चल रहा है कि जब इसमें हम रिपीटिंग यूनिट्स की बात करेंगे तो जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो एटम होंगे, राइट. और जो एटम हैं उसमें जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, यानी जो एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे. जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर, कार्बन के एटम्स जो हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स क्या होते हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जुड़े होते हैं. और वो फिर क्या बना लेते हैं, एक सॉलिड नेटवर्क बना लेते हैं. और ऐसे सॉलिड्स को फिर हम बोलते हैं एटॉमिक सॉलिड्स या फिर कोवलेंट सॉलिड्स, और तीसरा नाम उसका है नेटवर्क सॉलिड्स. तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं कोवलेंट में, तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम होंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, particles are atom.
अच्छा, जो हमने आयनिक सॉलिड डिस्कस करी थी उसमें अगर हम बात करें कि कौन से यहाँ पे फोर्सेस काम करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करते हैं, राइट। और जब हम एटॉमिक सॉलिड्स में बात करेंगे या कोवलेंट सॉलिड्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी जो एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ जो लिंक्ड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन की क्या होती है, टेट्रावेलेंसी होती है, यानी कार्बन जो है वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कुछ इस तरह से कार्बन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, हर कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड आ रहे हैं, राइट। और एक पूरा जायंट नेटवर्क या सॉलिड नेटवर्क यहाँ पे बन के आता है, जिसमें कार्बन क्या होंगे, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ऐसा एक पूरा जायंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा, उसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एटम है, और यहाँ कार्बन के एटम है और कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो जाती हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर नो फ्री इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन है, जो डायमंड के साथ होता है कि अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होंगे, इन दिस कंडीशन दे विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे विल बी वेरी हार्ड। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, दे विल बी वेरी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डायमंड, लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, as well as they will not be very hard, they will be soft। और इससे आपको रिलेट कर पा रहे होंगे आप, जब हम बात करेंगे तो यहाँ तो हमने डायमंड की बात करी थी, और ये आ जाता है ग्रेफाइट, और इसमें जो स्ट्रक्चर भी बन के आता है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। डायमंड का एक बहुत ही सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और जब ग्रेफाइट की हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ही वो सॉफ्ट होता है या बहुत हार्ड नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है मॉलिकुलर सॉलिड। अब मॉलिकुलर सॉलिड से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, या फिर मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस भी क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक इन नेचर होती हैं। तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस इस कैटेगरी में आती हैं। एंड जिस तरह से आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट थे, कोवलेंट में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू सारे एटम अटैच थे, इसमें अगर हम बात करें तो जो मॉलिकुलर सॉलिड हैं उसमें जो अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं वो आइदर हो सकते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, या फिर वॉन्डरवॉल फोर्सेस। मीन्स कोई एक एक्चुअल बॉन्ड नहीं होगा, बस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, जिनको हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो जो रिमेनिंग हमारे पास हम फोर्सेस की बात करते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी मॉलिकुलर सॉलिड्स में। अब मॉलिकुलर सॉलिड्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं। इसका पहला टाइप जो है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स नाम से ही पता चल रहा है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात करेंगे तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो नॉन पोलर इन नेचर होंगी, यानी उनमें डाइपोल नहीं होगा। और वो कब होता है, जब कुछ हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसमें Cl एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो जो Cl2 है वो क्या हो रहा है, एक कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। तो इसी तरह से H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, या फिर हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो सकता है एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। फिर सेकेंड कैटेगरी हमारे पास इसमें पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं। अब पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स अगर होंगे जिस तरह नॉन पोलर हैं, पोलर में क्या होगा, पोलर में हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल है इनमें पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स जिनमें पोलैरिटी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल HCl,
SO2 एसेट्रा, ये सब इसमें आ जाएंगे। और थर्ड कैटेगरी है ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमोनिया की, अगर हमने एक क्रिस्टल का पीस ये ले लिया, उसमें हमारे पास अमोनिया है, उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, HF है, वाटर है, राइट। तो सपोज हम कुछ भी ले लें कि हमने क्रिस्टल का पीस ले लिया और उसमें हमारे HF प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये अपने आप में क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं और एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ये रिपीटिंग यूनिट्स हो रही हैं, ये रिपीटिंग यूनिट्स आ रही हैं और ये आपस में किस तरह से जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगी। और अगर नॉन पोलर होते तो ये Cl2 आ जाता, और वो भी वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू, क्योंकि हमने कर रखा है कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें भी लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तरह होते हैं और मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं अच्छी तरह से। तो ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गए हमारे पास, 3 तरह के, आयनिक सॉलिड्स, एटॉमिक सॉलिड्स एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो आज की क्लास में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोई भी सॉल्ट जैसे NaCl, सोडियम सल्फेट, कोई भी सॉल्ट अगर हमारा है वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा। इवन अगर हम मॉलिक्यूल्स भी ले लें, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर का मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आएंगे। और दूसरी हमने कैटेगरी करी अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप्स डिस्कस किए, जैसे पहला हमने डिस्कस किया आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड का भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आयनिक सॉलिड हमारा क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, और भी जैसे सोडियम सल्फेट का नाम लिया था, सोडियम सल्फेट हो सकता है। नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। और मॉलिकुलर सॉलिड्स अगर बोले तो उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास वाइट फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, नैप्थलीन है, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे मॉलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।